آج ہاں بات ہوگی بالکل ترتیب سے بات ہوگی، سمجھے؟ ہاں وقت چلیے کسی جی۔ کا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے ہاں جی۔ آپ کے وقت میں بات نہیں کروں گا، آپ کی بات مکمل ہونے کے بعد میں بات کروں گا، جی اور جب میری بات مکمل ہوگی تو آپ بات کریں گے۔ جو ٹاپک آپ اٹھائیں گے، جب تک وہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوگی تب تک اس ٹاپک کو چھوڑ کے دوسرے ٹاپک پہ جانا نہیں۔ پہلے عقیدے پہ بات ہوگی، اعمال پہ بعد میں بات ہوگی۔ آپ پہلے سمجھ لیجئے، عقیدہ ایمان اور کفر میں فرق کرتا ہے۔ ایمان اور عقیدہ پہلے بات ہونی چاہیے۔ جب ایمان عقیدہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد اعمال پہ بات ہوگی۔ دیکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اور پھر پردہ، حلال حرام، چلیے یہ بھائی، سب آپ ٹاپک پہ آئیے، چلیے تو اپنے کو بھی سمجھ میں آتا ہے، پھر آپ بے ٹاپک پہ صبر کیوں آئیے ہو نا۔ جا رہا ہے؟ یہ آدھا منٹ میں ٹاپک ہی مکمل ہو رہی بات۔ یہ سب جتنی باتیں ابھی بتایا میں نے، ایمان، یہ سب اعمال میں آتے ہیں۔ حلال حرام ہو یا پھر نماز، روزہ، فرض، واجبات، پردہ، یہ سب اعمال میں آتے ہیں۔ ہاں، اب یہ سب چیزیں آپ ویڈیو دکھا کر ہمیں غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ ہمارے عقیدہ بتائیے اور ہمارے علماء کی کتاب بتائیے، جو غلط ہوگا اس کا ہم غلط کا اقرار کریں گے، توبہ کریں گے، اور اگر غلط نہیں ہوگا تو پھر آپ کو توبہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ ٹاپک پہ آئیے۔ آپ کے ٹاپک جو آپ نے کہا ہے کہ عقیدہ، جو دیکھے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، دیوبندیوں کی کتاب میں لکھا ہے۔ ہاں میں نے وہ سرچ مارا، اس میں پوری بات ایسی نہیں لکھی ہے۔ اس میں سوال کیا ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں سوال ہے، کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا اللہ جھوٹ بھی بولنے پر قادر ہے؟ اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو مولانا نے اس کا جواب دیا ہے شروع میں ہی کہ اللہ کے اوپر کوئی یہ مانے جس کا عقیدہ اللہ جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے۔ پھر اللہ چاہے تو قدرت کے بارے میں ہے کہ اللہ چاہے جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ سب کر سکتا ہے۔ تو اچھا، اللہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ جھوٹ بولنا عیب ہے، اللہ عیب سے پاک ہے۔ وہ ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اور بریلوی حضرات اس مسئلے کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، جیسے گوڈی میڈیا ہے، کہاں کی بات کہاں کرتی ہے، وہی حال آپ لوگ کا ہے۔ تو اس کا جواب میں نے بہت سارے ویڈیو دیکھے، دیوبندیوں نے ایک دم دیا ہے۔ بس میں کمپلیٹ کر لیا، بتائیے آپ۔ اچھا، تو آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں، اور اس کا کتاب میں جو مثال دیا ہے، وہ مثال سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور بولے گا بھی، بولا بھی۔ یہ ثابت ہوتا ہے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ جیسے جھوٹ کیا چیز ہے؟ جھوٹ کہتے ہیں خلف وعد و وعید، یہ لکھا ہوا ہے اس میں، براہین قاطعہ پیج نمبر 10۔ آپ سمجھیے، دیوبندی کی خیانت سمجھیے۔ ہم توڑ مروڑ کر ہم نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ علماء دیوبند ہی توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے گودی میڈیا کہہ رہے ہیں۔ ہم آپ کو اندھ بھکت کی طرح، جیسا اندھ بھکت جو کہتے ہیں ان کے گودی میڈیا وہی مان لیتے ہیں، ایسا ہی دیوبندی جو کہہ رہے ہیں وہ آنکھ بند کر کے آپ مان رہے، تھوڑا غور و فکر بھی نہیں کر رہے، حالانکہ آپ تحقیق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ تحقیق نہیں کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے خلف وعد و وعید، یہ بھی جھوٹ کا ایک قسم ہے۔ آپ خلف وعد و وعید کو آپ کو سمجھانا پڑے گا، آپ وقت دیں گے تو سمجھاؤں گا، پھر آپ کہیں گے کہ آپ زیادہ ٹائم لے رہے ہو۔ خلف وعد و وعید سمجھنے کے لیے 2 منٹ آپ کو ٹائم لگے گا۔ جیسے وعدہ خلافی اور وعید کے خلاف، دونوں وعید اور وعدہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بچے کو کہا کہ اگر فیل کرے گا تو تجھے گھر سے نکال دوں گا، بھگا دوں گا، اس ایگزام میں فیل کرے گا تو گھر سے بھگا دوں گا، یہ ہو گئے وعید، ڈانٹ۔ اور آپ نے کہا کہ اگر پاس کرے گا تو تجھے اچھا موبائل دلاؤں گا، تجھے اچھا فیسلٹی، اچھی چیز دلاؤں گا، یہ ہو گئے وعدہ۔ اب 2 چیز، ایک وعدہ اور وعید۔ تو اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب یہ لکھا ہوا ہے وعد وعید دونوں کے خلاف اللہ کرے گا، اور یہ بھی جھوٹ ہے، وعدہ خلافی کرنا بھی جھوٹ ہے، وعید کے خلاف کرنا بھی جھوٹ ہے، اور وعید کے خلاف کو بھی جھوٹ کہا گیا، حالانکہ وعید کے خلاف جھوٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بیٹا کو کہا کہ تو فیل ہو جائے گا تو گھر سے بھگا دوں گا، تو فیل ہوا، لیکن آپ نے مہربانی کیا، گھر سے بچے کو بھگایا نہیں،
تو दूसरा कोई देखकर कहेगा आपने तो कहा था बेटे को भगाऊंगा, आपने भगाया क्यों नहीं, आप झूठे हो। तो आप कहेंगे अरे ये झूठ नहीं होता, ये मेहरबानी है, बच्चे ने फेल किया, गलती किया, एक बार माफ कर दिया, घर से भगाऊंगा नहीं। तो ये हो गया मेहरबानी। अल्लाह मेहरबानी करता है, अल्लाह झूठ नहीं बोलता। और इसी को उलमाए देवबंद ने झूठ कहा। जब ये झूठ है तो ये तो अल्लाह करता है। अल्लाह हर इफ्तार के वक्त में 10 लाख जहन्नमी को जहन्नम से छुटकारा देता है। यह हदीस सही से साबित है। तो ये जो वईद के खिलाफ हुआ, अल्लाह ने वईद दिया था कि ए बेनमाजी तुझे जहन्नम में डालूंगा, ए बेरोजेदार तुझे जहन्नम में डालूंगा। लेकिन इफ्तार के वक्त अल्लाह मेहरबान हुआ, अल्लाह ने 10 लाख जहन्नमी को जहन्नम से छुटकारा दिया। अब उलमाए देवबंद की किताब में लिखा हुआ है ये भी झूठ है। तो ये अगर झूठ है तो अल्लाह करेगा नहीं बोल रहे हैं आप, ये आपका झूठ है, क्योंकि अल्लाह तो ये करता है। अल्लाह वईद के खिलाफ करता है और ये बिल्कुल कन्फर्म है, हदीस से साबित है। तो ये उलमाए देवबंद का बिल्कुल गुमराहना अकीदा है। दूसरी बात ये आपने कहा कि झूठ बोल सकता है मगर बोलेगा नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है अल्लाह की जात से झूठ मुमकिन है। आप मुमकिन अगर मानेंगे, आप नमाज में पढ़ते सुबहान रब्बियल अज़ीम, मतलब क्या हुआ, पाक, अल्लाह पाक है। किससे पाक है? झूठ से, आइबों से पाक है, बुराई से पाक है। तो आप कन्फर्म कह रहे हैं। अगर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है, तो फिर कन्फर्म नहीं हुआ, आपका ईमान नहीं रहा। अगर कहते हैं झूठ भी बोल सकता है तो फिर आप अल्लाह की बात पर शक कर रहे हैं। और सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम इसके खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह पाक है। पाक का मतलब ये हुआ कि अल्लाह से झूठ नामुमकिन है। और जो कह रहे हैं इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज कर सकता है, हर चीज में झूठ शामिल नहीं, क्योंकि आइब अल्लाह से नामुमकिन है, पहले ही निकल गया। अल्लाह हर चीज कर सकता है, जो अल्लाह के सिफात के लायक है, अल्लाह के शान के लायक है, वही कर सकता है। जो अल्लाह के शान के खिलाफ है वो नहीं कर सकता। ये उलमाए देवबंद की बेवकूफ़ी है, और उस बेवकूफ़ी को आप समझने के बजाय आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे। अब ये अकीदा उलमाए देवबंद का कुफरी अकीदा है। अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये कुफरी अकीदा है। आगे बढ़िए, आप बोलिए। वही बात आप वो बोल रहे हो कि वही बात उसमें भी वही समझा रहे हैं कि अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। वही बात बोल के वही आ रही है, अल्लाह की कुदरत को समझा रहे हैं। बाकी आप जो तोड़ मरोड़ के पेश करना है पेश करो। बाकी तो मेरे हिसाब से कि मैं जितना तहकीक किया उससे मुझे पता चला कि मतलब उनका ये अकीदा नहीं है। वो खाली एक मसले को समझा रहे हैं, और समझाने में गलती हुई होगी, कोई नहीं समझ रहा है, कोई वो कर रहा है। बाकी कोई भी देवबंदी का ये अकीदा नहीं है, चाहे अकीदा नहीं है। बस मेरी बात कंप्लीट हो गई। अच्छा, आप बार बार, मैं इतना एग्जाम्पल दे के समझाया, क्योंकि मैं जल्दी एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको ये ना लगे कि बहुत ज्यादा वक्त ले रहे। फिर मैं वापस फिर एक बार कंप्लीट और मुख्तसर करके एक बात और समझाता हूँ। अल्लाह को कंप्लीट हो गई है। नहीं, कंप्लीट नहीं हुई। आपने जब माना ही नहीं, आप जब तक मानेंगे नहीं, या जब तक मेरी गलती साबित नहीं होगी या आपकी गलती साबित नहीं होगी, तब तक बात कंप्लीट नहीं हुई। आप बात अधूरा छोड़ के हम नहीं जाएंगे। पहले बात तय हुई थी। नहीं, आपकी बारी हो गई। बात मैं कंप्लीट करूं, मैं बात करूं, फिर उसके बाद आप बात कीजिए। बात यह है, आप नमाज में कहते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह पाक है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, आय अल्लाह तू बड़ा है, तू पाक है। आपने जो पाक अल्लाह को कहा, कन्फर्म कहा या शक में कहा आपने? अगर आपने शक में कहा तो आप ईमान वाले नहीं। अगर आपने कहा कन्फर्म, आय अल्लाह तू पाक है, यानी झूठ भी अल्लाह से नामुमकिन है और आइब अल्लाह से नामुमकिन है, तब आपने यकीन के साथ कहा अल्लाह पाक है। आप कह रहे हैं अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, यानी अल्लाह नापाक भी हो सकता है। झूठ तो नापाक चीज है, ये सिफात के एतबार से नापाक चीज है। कोई जैसा लिक्विड चीज पाक, ऐसा लिक्विड नहीं है। सिफात के हिसाब से अल्लाह पाक है, सिफात के हिसाब से। आप कह रहे हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो सिफात के हिसाब से नापाक हो गया, माज़ अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और झूठ अल्लाह से नामुमकिन है। क्यों? अगर कहते झूठ बोल सकता है, फिर सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला आप कन्फर्म नहीं कह रहे, अब शक में कह रहे हैं। हो सकता है झूठ भी बोला हो, क्योंकि बोल सकता है। जिससे बोल सकता है उसके अपोजिट चीज को कंफर्म नहीं कर सकते। या चाहे आप पहने हुए कपड़े,
آپ کنفرم کہیں گے کہ آپ کے کپڑے کنفرم پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے کپڑے میں ناپاکی ہرگز لگی ہوئی نہیں ہے، کنفرم پاک ہے۔ پھر آپ کہیں ہو سکتا ہے، پاک بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا اپوزٹ کی بات بھی ہو سکتی ہے، ناپاک بھی ہو سکتا ہے۔ تو ممکن دونوں چیز میں ہوتا ہے اور کنفرم ایک چیز میں ہوتا ہے۔ آپ جو نماز میں کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، کنفرم کہہ رہے ہیں یا شک میں کہہ رہے ہیں؟ اگر شک میں کہہ رہے ہیں تو آپ ایمان والے نہیں، اور اگر کنفرم کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ آگے اس کے بعد اگر آپ غلطی نہیں مان رہے ہیں تو آپ سے بڑا کم عقل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں گالی نہیں دے رہا ہوں، آپ معاف کرنا، کیونکہ میں کسی کو بد زبانی کر کے میں بات نہیں کرتا، لیکن اتنا کم عقل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو بار بار میں سمجھا رہا ہوں سبحان ربی العظیم، آپ اقرار کیجئے کنفرم کہہ رہے ہیں یا شک میں کہہ رہے ہیں؟ بولیے، آپ کو بولنے دیا جا رہا ہے۔ ہاں بھائی صاحب، وہ مسئلہ شروع میں ہی جب کنفرم اس میں بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی یقین نہیں رکھتا ہے کوئی بھی انسان، اسی مسئلے پہ پہلے ہی مسئلے میں جو سوال ہے اس میں کہہ دیا گیا جو کنفرم یقین، کوئی یہ یقین رکھے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے تو کافر ہے، اور اپنا عقیدہ پہلے ہی بیان کر دیے ہیں، پر اس سوال کا اس میں وہ جواب دے رہے ہیں۔ جیسے ملحد سوال کرتے ہیں، کیا یہ سوال کا مسلمان جواب دیتے ہیں کیا اللہ خود ایسا کوئی پتھر بنا سکتا ہے کہ وہ اٹھا نہ سکے؟ مطلب ملحد اس کا سوال کا جواب تو دیتے ہیں، اور اسی عقیدے میں پہلے ہی عقیدہ جو مولانا کا عقیدہ اس میں لکھ دیا گیا ہے جو عقیدہ ہے، تو اس میں وہ بات آتی نہیں ہے، گھوم توڑ مروڑ کے آپ پیش کرو عقیدہ انہوں نے اپنا بیان کر دیا، وہ کفر ہے۔ اللہ کے اوپر کوئی یہ یقین رکھے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کفر ہے۔ بھائی آپ بار بار وہی بات آپ دہرا رہے ہیں، توڑ مروڑ آپ رہے، میں توڑ بھی نہیں رہا ہوں، مروڑ بھی نہیں رہا ہوں۔ بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے سبحان ربی العظیم کنفرم ہے، کنفرم ایک چیز میں ہوتا ہے، اور شک ہے نا، شک دونوں چیزوں میں، شک دونوں چیز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہیں بھی بول سکتا ہے۔ جھوٹ بول سکتا ہے تو کوئی اگر شک کرے گا بولا ہوگا، کوئی اگر شک کرے گا کہ نہیں بولا ہوگا، تو یہ شک میں ہو جاتا ہے، اللہ کی صفات میں شک ہوتا ہے۔ اور کنفرم ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ بھی ایک عیب ہے، پاک ہے۔ پاک کا مطلب ہوا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، جیسا آپ کے کپڑے پاک ہے تو اس میں ناپاکی لگی نہیں، کنفرم۔ پھر آپ کہیں گے نہیں ناپاکی لگ بھی سکتا ہے، پھر نہیں بھی لگ سکتا ہے، تو آپ کا کپڑا پاک ہونے کا کنفرم نہیں ہوا۔ اسی طرح اللہ پاک ہے بلا تمثیل، اللہ پاک ہے، اگر کہتے جھوٹ اب ممکن ہے تو اللہ کے پاک صفات کا کنفرم نہیں ہوا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتا ہے، اس پر بات نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ بول سکتا ہے۔ اگر جھوٹ بول سکتا ہے تو جھوٹ کیا چیز ہے اس کو بھی وہاں پر کلیئر کیا ہے۔ اس کتاب کا میں فوٹو بھیجتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے خلف وعد و وعید، اللہ کرے آپ وہ گا۔ کتاب کا مسئلہ نکالیے اور شروع سے پڑھ کے سوال جو کیا پورا پڑھ کے بتائیے مجھے۔ ہاں، خلف وعد و، ہم یقین رکھتے نہیں، پورا بات شروع سے سوال سے لے کے 20 مت پڑھیے، شروع سے ہاں بتائیے شروع آپ۔ سے میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، ہاں سنا رہا ہوں۔ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ میرے سمجھ میں آ رہا سبحان سمجھ ربی میں آ رہا۔ العظیم، آپ کنفرم اگر تو آپ کہہ رہے ہیں، نہیں، آپ ایک ہمارا بات کا یقین جواب ہے۔ دیجیے مجھے، آپ جب نماز میں کہتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، پہلے وہ بات آپ پوری پڑھیے نا، وہاں سے لے کے جو میں شروع پہلے سے آپ سے بات ہے۔ اتنا کنفرم کرنا چاہتا ہوں، آپ جب سبحان ربی العظیم کہتے ہیں کنفرم کہتے ہیں یا شک میں کہتے ہیں؟ کنفرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو کنفرم، اللہ عیب سے پاک ہے، بے شک اس میں کوئی شک اب نہیں ہے، عیب اللہ کے ذات میں شامل ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتا بے شک۔ تو اب جھوٹ بول سکتا ہے تو شامل ہو سکتا ہے، تو آپ کو کنفرم نہیں رہا۔ آپ وہ پوری بات پڑھیے نا پہلے، وہاں کیا لکھا ادھر نہیں، وہ بات پوری آپ بتائیے کیا لکھا ہے ہاں شروع میں سے۔ یہ سوال پہلے سوال ہے، سوال جواب ہے، سوال سے پڑھیے، سوال کرنے والے سوال کیا کیا، اس کا جواب کیا دیا انہوں نے۔ جو پیج میں لکھا ہوا ہے وہ پیج کا سوال کا میں آپ کو پڑھتا ہوں، پھر آپ کہیے کہ بات نامکمل ہے، سوال بھی کرنا، سوال بھی سمجھنا ضروری ہے، سوال کرنے، سوال سے پڑھیے پھر بعد میں وہ کہیے تبھی گا۔ تو سمجھ میں آئے، سوال کرنے کا سوال کیا آپ کیا تو انہوں نے سنیے نا، جواب کیا دیا ہے۔ واضح ہو کہ امکان کذب
इम्कान किस्ब के जो माना आपने समझे हैं, इम्कान किस्ब के जो माना आप समझे हैं वह बिल इत्तेफाक मरदूद है। यानी इम्कान, आप ये जवाब दिया जा रहा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये मसले पर आप जो समझा है वो बिल्कुल मरदूद है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात से झूठ भी हो सकता है, और ऐसा अकीदा अगर रखे कोई तो उसके बारे में क्या हुक्म है। और झूठ अल्लाह बोल सकता है, जैसा अल्लाह की किताब में अल्लाह के कलाम में भी झूठ हो सकता है, झूठ का शाइबा, ये सवाल किया गया था। उसका जवाब में कहा गया है कि अल्लाह की ज़ात से झूठ जो है ना, ये जो आप समझ रहे हैं बिल इत्तेफाक मरदूद है। यानी अल्लाह ताला की तरफ से वकूअ का कायल होना बातिल है। वकूअ का मतलब है जो बिलफेल प्रैक्टिकली हो चुका है झूठ, अल्लाह ताला झूठ बोल चुका है माज़अल्लाह, ऐसा अकीदा रखना ये कुफर है, बातिल है। और खिलाफ नस्स सरी अमन असदक़ु मिनल्लाहि क़ीला अमन असदक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कुरान की आयत है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, ये भी आयत दोहराया गया है। ये आयत से ये साबित हो रहा है, इन आयत से लिखा है कि ऐसा बोलना कुफ्र है ना, लिखा है ना, क्या लिखा है? आप सुनो, बाद में क्या लिखा है। अरे शुरू में अकीदा लिख दिए वो कुफ्र है, अपना अकीदा बयान कर बातिल दिए। है, वो तो हो गया। शुरू में लिख दिए बातिल है, जवाब गोल आगे मोल पढ़िए। करके जो घुमाया है, मैंने नहीं घुमाया, ये किताब वाले घुमाया है अपने बातिल अकीदा साबित करने के लिए, देवबंदी। अब मैं पूरा पढ़ता हूँ तब शुरू में लिख दिए समझिए। कि कुफ्र है, अकीदा जो रखता है कुफ्र है। कुफर अगर वो नहीं भी लिखा, अकीदा कोई बातिल लिखा है। सुनिए, पूरा पढ़ने दीजिए, आधी में बोलेंगे तो फिर आप समझ में नहीं आएगा। बिल इत्तेफाक बातिल है और खिलाफ नस्से सरी है। वमन असदक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन असदक़ु मिनल्लाहि हदीसा इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद वगैरह। खल्फ वईद जिसको साहिब बराहीन कातिया ने तहरीर किया, वो दरअसल किस्ब नहीं सूरत किस्ब है। उसकी तहकीक में तूल है। अल हासिल, यानी अल हासिल आया, देखिए हासिल मतलब जितनी बातें अभी तक हुई उसका खुलासा, जितनी बातें अभी तक हुई, सवाल है, सवाल का जवाब में अभी तक जो बातें हुई है उसका खुलासा अभी बता रहा। अल हासिल, हासिल का मतलब तो खुलासा। इम्कान किस्ब से मुराद दुखूल किस्ब तहत कुदरत बारी ताला, यानी अल्लाह ताला से जो वअद, अल्लाह ताला ने जो वअद वईद फरमाया है उसके वकूअ मुमकिन है। अब बताइए, खल्फे वअद वईद यानी जो अल्लाह ने वादा किया उसके भी खिलाफ अल्लाह कर सकता है, और जो वईद किया वो वईद के खिलाफ भी अल्लाह कर सकता है, और ये भी झूठ का एक किस्म है। अब बताओ, जो वईद के खिलाफ अल्लाह करेगा, जैसा आगे पढ़िए, आगे 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 पढ़िए, आगे पढ़िए। अभी मैं किताब मेरे पास में नहीं है, जितना था उतना मैं पढ़ के सुनाया, और एक दूसरी किताब का इबारत मेरे पास है, वो सुनिए। खल्फे वअद वईद कुदमा में मुख्तलिफ सी है, क्योंकि इम्कान किस्ब का मसला जदीद किसी ने नहीं निकाला, बल्कि कुदमा में इख्तलाफ हुआ कि खल्फे वईद जायज है या नहीं। एक किताब और है, रिसाला एक रोजा, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला, वही पूरी बात तो वाजे हो गई, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, वही तो बात तो वाजे हो गई है। अकीदा अपना थोड़ी वो बयान कर रहे हैं। आप बताइए। बात तो वाजे एक, मैं आपको ये पहले शुरू में मिसाल देके समझाया, अभी मैं आपको एक बात और फिर से कहता हूँ। चलिए अब जो मसला वहाँ क्लियर ही है। क्लियर बिल्कुल तो नहीं कि समझा आपने रहे समझा हैं, नहीं, आप क्लियर बिल्कुल एकदम सिर्फ दिफा आप कर दो रहे हैं चार, उनकी गलत बात का। मुझे ये बताइए। दिफा मैं नहीं कर रहा हूँ, दिफा नहीं कर रहा हूँ। मुझे समझाने में उनसे कुछ गलती हुई है तो कुछ बात समझा रहे हैं, लोगों ने कुछ समझा कुछ है। गलती नहीं, आप भी गलती मान रहे हैं, और अल्लाह के बारे में गलती कुफर होता है। अल्लाह के सिफात के बारे में गलती मामूली गलती नहीं होती। शुरू में ही कह रहे हैं गलती कि सुनिए, आपने अगर तो कुफ्र तो कह रहे हैं। सुनिए, कोई ये पूरी इबारत में हासिल, जहां से हासिल लिखा हुआ है वहां लिखा है कि खल्फे वअद वईद जायज है, अल्लाह की जात से खल्फे वअद वईद जायज है। इससे क्या साबित हो रहा है, आपको इफ्तार के वक्त में आप गुनहगार थे, आपने ऐसा गुनाह किया जो आपके लिए जहन्नम, आपके लिए लिख दिया गया था कि ये बंदा जहन्नमी है, इमरान। लेकिन इफ्तार के वक्त में अल्लाह की मेहरबानी हुई, आपने इफ्तार के लेके बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपकी जहन्नम अल्लाह ने माफ कर दिया, जन्नत का फैसला हो गया। अब ये साहिब बराहीन कातिया
रशीद अहमद गंगोही कहते हैं ये अल्लाह ने झूठ बोला, अल्लाह आपको कहा था कि जहन्नम में डालूंगा, फिर आपको अल्लाह ने इफ्तार के वक्त में मेहरबानी करके जन्नत में डाला, तो ये झूठ। और आप कह रहे हैं झूठ बोलेगा नहीं, बोल सकता है मगर बोलेगा नहीं। तो ये अगर झूठ है तो आपको माफ करके तो अल्लाह ने झूठ बोल दिया, झूठ हो गया अल्लाह की जात से, हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह की तो ये झूठ हुई ना, अल्लाह झूठ बोला। फिर झूठ कहाँ से हुई? ये बराहीन कातिया किताब वाले कह रहे हैं झूठ हुई, मैं पेज भेजता हूँ, आप पढ़ो समझो उसको। जो भेज रहे हैं वो उतना ये झूठ, ये तो अल्लाह की रहमत है। तो रहमत को झूठ बोल रहा है, रहमत को झूठ साबित करके कह रहा है कि खल्फे वादो वाईद झूठ है। इसीलिए ये देवबंदी छुपाते हैं, गोल गोल करते हैं। नहीं, देवबंदी ये कहा शुरू में ही मसला उन्हें अल्लाह के शुरू में तो दूसरी बात कहा, शुरू में दूसरी बात का वही तो बयान कर दी, बात समझाने में शुरू में आखिर में समझाने में। अरे भाई समझाने में गलती क्यों करेगा? अल्लाह की सिफात, अल्लाह के बारे में अकीदा अपना शुरू में बयान कर दिए है, नहीं किए। देवबंदी और उससे लेना देना नहीं है, देवबंदी बात से देखा जाता है। देवबंदी देखिए इतना गोल गोल कर रहा है, मैं आपको खुलासा करके समझाया। कर रहे हैं, बात को तोड़ मरोड़ के उसको कुफ्र साबित कर रहे हैं। तोड़ मरोड़ कर मैं कहाँ साबित कर रहा हूँ आपको? अल्लाह ने जहन्नम का फैसला आपका हुआ था, जहन्नम का फैसला हुआ था, सही हदीस से साबित है, वो झूठ नहीं है। तो वो बराहीन कातिया वाले कह रहे हैं ये झूठ, तो फिर ये झूठ कह के अल्लाह की शान में गुस्ताखी किया या नहीं? इसमें किया होगा ऐसा, अगर वो कह रहे होगा नहीं, आप कंफर्म है, किताब है, आप खुद सुना है, उलमा देवबंद से सुना है, और ये झूठ है, ये झूठ बोल चुका है। पूरी बात मैं वो मसला चैट जीटीपी पे जाके मारा ना, वो देवबंदी है ना बरेलवी कोई नहीं है, और पूरा मसला उस पे आ जाता है, क्या बरेलवी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये भी अल्लाह की एक नेमत आ गई है। हाँ, अभी आपको मैं जितना, देखिए मैं ज्यादा जिद नहीं करूंगा, जितना समझाने का मेरा हक था मैं समझाया। तो यकीन रख के, अगर कोई ये यकीन रखता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह झूठ बोलता है तो काफिर है, वो तो मेरे नजदीक हो चाहे जो भी हो। अब ये जो हो गया किताब में जो खत्म, मैं तो मान लिया ना, अगर वो झूठ ऐसा बोले है उनका यकीन होगा, अगर होगा, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर उनका अब तो अगर मगर नहीं चलेगा ना, किताब जब सामने आ गई। मैं खुदा थोड़ी हूँ, नहीं जब सच्ची बात का मतलब एकदम, अगर मैंने कहा अगर उन्होंने कहा होगा अब देखिए बात यहाँ पर हम हक कबूल करने आए, वो नहीं अगर उसने बात कही होगी, अगर वो बात ऐसा है जैसे आप कह रहे हैं, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कहा है, उनका यकीन है, उनका ईमान है देवबंदियों का कि अल्लाह झूठ बोलता है, ये आप कह रहे हैं जी। हाँ, तो हम किसी भी देवबंदियों से पूछ लो, गए किसी भी देवबंदी से पूछ लो, उनका यकीन नहीं, वो शुरू में बता दिया अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता है। अभी जो बराहीन कातिया पेज नंबर 10 है उसमें कहा गया कि एक मसला है, वो एक मसला एक उनकी तरफ से उनसे मिसटेस्टिंग हुई होगी समझाने में, कोई आदमी तहकीक कर। देखिए इमरान भाई, चलो आप यहाँ टॉपिक इसको यहाँ भाई, हाँ मैं आपको खुलासा लास्ट आपको दूसरी टॉपिक मैं आपका सवाल मैं आपको जोर जुलूम मैं नहीं करूंगा, आप चुप रहिए एक मिनट, और मैं लास्ट खुलासा मैं आपको जो बातें दो चीजें बताया, मेरा सवाल तो मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। मैं पहले लास्ट ये बोलना चाहता हूँ कि दो जिहत से आपको मैंने समझाया, एक तो सुबहान रब्बियल अज़ीम कन्फर्म कहते हैं आप कंफर्म कहते हैं, अब इसके खिलाफ आपको पढ़वाया मैंने, उन्होंने लिख दिया है कि जो भी इंसान यकीन रखे कि अल्लाह झूठ बोलता है वो काफिर है। तो बोल सकता है मानना भी काफिर है, बोल सकता है मानने वाला भी काफिर है, क्योंकि सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम आप झूठ बोल सकता है अगर अकीदा रखे, बोलता है अकीदा रखे तो भी काफिर, बोल सकता है अकीदा रखे तो भी काफिर। क्यों? सुबहान रब्बियल अज़ीम लास्ट, बस सुबहान रब्बियल अज़ीम आपको यकीन है तो आप बोल सकता है वो भी काफिर होता है, क्योंकि यकीन के साथ आप बोल रहे हैं, और यकीन के खिलाफ यकीन के साथ शक है, यकीन के खिलाफ शक है। एक मसला है उसको समझा रहे, उसके आप एक बार मेरे साथ दूसरा समझा, आप लास्ट में आप यकीन के साथ बोलिए सुबहान रब्बियल अज़ीम, बोलिए एक बार।
मेरे यकीन के साथ ही नहीं आपसे अभी कहना बोलिए, जब मेरे नमाज सामने अभी दोहराइए एक बार। अभी मैं मैंने ईसा में पढ़ के आया, यकीन के साथ ही, बगैर यकीन के नहीं पढ़ा नहीं है। नहीं अभी एक बार पढ़िए, तो सुबहान चलिए बात रब्बियल छोड़िए, पर अज़ीम। अब हम आते हैं दूसरी मैं अब टॉपिक पे। दूसरा मसला अमीनुल बोलूंगा, मैं एक बार कादरी पहले ने जो दोहरा अल्लाह की लीजिए, सिफात में एक बार पहले गुस्ताखी की दोहरा है उसके लीजिए, बारे में बातें हैं। एक बार दोहरा लीजिए सुबहान नहीं रब्बियल नहीं, अज़ीम। बोलिए क्या बेशक फर्क सुभान पड़ता है। रब्बियल अज़ीम आपके कहने सब दोहराएंगे, नहीं नहीं बेशक आप मेरे साथ कहे, दोहरा आप लीजिए कहिए सुबहान रब्बियल अज़ीम। बोलिए। सुभान रब्बियल अज़ीम, हाँ बेशक चलिए, अब आपने यकीन कर लिया कि अल्लाह हर आइब से पाक है, और बेशक। वो जब तो अल्लाह पाक हर ही आइब है, से वो तो पाक है, अकीद झूठ भी आपसे एक तो आइब है। पहले से ही है। आप समझते हो, पहले से ही है मेरे साथ। हाँ तो अल्लाह जब सबसे पहले, अल्लाह हर आइब से पाक है, झूठ भी एक आइब है, और झूठ अल्लाह की पर जात से नामुमकिन ये है। अकीदा और हमारा उसके बाद देवबंदी आप हो आगे चाहे बढ़िए, जो हो, आपका सवाल पर कीजिए, चलिए सवाल सवाल कीजिए। ये करना है जो अमीरुल कादरी ने अल्लाह की जात में, अल्लाह की शान में जो गुस्ताखी की इतनी बड़ी कि नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह जो कुरान में अपनी शान बयान करता है वही शान शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मुतालिक उसने बयान किया कि सारे कलम, सारे जितने झाड़ है उसको कलम बना दिया जाए, समुंदर को शाही की बना दिया जाए, और गैस पाक की शान लिखी जाए कि कलम खत्म हो जावे और शाही सूख जावे, तब भी गौस पाक की शान खत्म नहीं होगी। और ये जो कुदरत अल्लाह ने अपने लिए कुरान में बयान किया है, यही शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए उन्होंने बयान किया है। तो ये कुफ्र है क्या है, इसको बताइए आप मेरे को। अच्छा, ये सुनिए, ये कुरान पहले नाजिल हुआ या अब्दुल कादिर जिलानी पहले दुनिया में आए। कुरान हाँ, नाजिल हुआ है। कुरान पहले नाजिल हुआ ना, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जो आयत है अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान अल्लाह बयान कर रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। आमीनुल कादरी को, मैंने कहा बोलो बयान अब्दुल कादिर बयान करो, अब्दुल कादिर जिलानी हाँ के तो लिए वर्ड यूज आमीनुल किए हैं। कादरी को सुनो, आमीनुल कादरी को हमारे उलमा इससे पहले तकरीबन 10 साल से हमारे उलमा बॉयकॉट कर चुके हैं, और ये जाहिल आवाम इनको कहाँ प्रोग्राम रखवाते हैं, हमारे उलमा से पूछ के नहीं रखते। और बरेली का फतवा आज नहीं, आप जो पूछ रहे हो, इससे 10 साल पहले हमारे हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये HDI, ये शाकिर नूरी और अमीनुल कादरी, इनसे दूर रहने के लिए, ये गुमराह है, इनसे दूर रहो, अरे पर इनके वो कुफ्र, तहरीक से बाइकआउट का करो। वो मतलब वो बात कह रहे हो कुफ्र है कि नहीं है, मैं वो पूछ रहा हूँ। अच्छा, और बात रही कुफर, कुफर के बारे में सुनिए। जब अल्लाह ताला की जितनी सिफतें हैं, अल्लाह की सिफत, ये जो आपने कहा कुल्लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिज़ल बहरु क़ब्ला अन तनफ़िज़ कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा, ये जो कुरान की आयत है, ये अल्लाह ताला की शान में है ना। अल्लाह ताला की हर सिफात, बंदा अल्लाह की सिफात का मजहर होता है, सिवाय 2 सिफात के, बाकी जितनी सिफतें हैं अल्लाह बंदों को देता है। तो इसमें अगर किसी बंदे को कहा कि ये अल्लाह की सिफात का मजहर है, तो ये कुफर नहीं होगा। हाँ, अमीनुल कादरी बढ़ चढ़कर बहुत ज्यादा गुलू करता है, बहुत ज्यादा मन घड़त बातें बयान करता है, इस वजह से हमारे उलमा ने उसको गुमराह कहा, उससे बायकॉट करने का हुक्म दिया है। तो इसलिए और वो अमीनुल बात कादरी का वहां तक नहीं जा रही है, उसमें मसला अल्लाह ये की आ रहा है, सिफात का हम कहते बंदा हैं अल्लाह अल्लाह की जैसा सिफात का कोई नहीं मजहर है, होता है, पर वो उसमें कुफर बात नहीं वहां आ होगा। रही क्या। मेरी बात सुनिए अब आप, वहाँ हम कहते हैं कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है। अब वो कह रहा है कि अल्लाह जैसा ही अब्दुल कादिर जिलानी है, वो बात नहीं, ये वही आ रही, नहीं हुआ। घुमा आपने बात जो घुमाएंगे मसला वही, अल्लाह की सिफात और कलम ऐसा अल्लाह जैसा कोई है नहीं, तो वहाँ वो बात जो कह रहे हैं कि नहीं अल्लाह जैसा है। फिर दूसरी बात, मेराज, अल्लाह के नबी को मेराज हुई, अब वो कहते हैं नहीं शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी मेराज हुई है कि अल्लाह ने उनसे भी बात की है डायरेक्ट, तक अच्छा, मरतबा उनसे भी वादा लिया है। ख्वाब जी जी, में मेरी भी मेराज हुई, ख्वाब में। ख्वाब आप में नहीं क्या बात है, कहोगे। डायरेक्ट बात कह रहा हूँ। डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं मान सकते, कोई भी डायरेक्ट की डायरेक्ट बात है, मानेगा तो ख्वाब की काफिर बात होगा। नहीं हो रही है। ख्वाब डायरेक्ट ख्वाब की डायरेक्ट बात मैं कर ही मानेगा, नहीं रहा हूँ। हाँ, डायरेक्ट मानेगा तो काफिर हो जाएगा, अल्लाह बात काफिर है। करता है। अगर उसने आमीनुल कादरी ने डायरेक्ट माना, मैं वीडियो भेज सकता तो मैं हूँ, मैं काफिर, वीडियो। चलो मैं काफिर कह रहा हूँ। अगर हाँ अमीनुल कादरी ने बेदारी में जिस्म अतहर के साथ, जिस्म जिस्मानियत के साथ, अगर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मेराज मानता है,
تو आमीन उल कादरी काफिर है। मैं कह दिया, बात क्लियर हो गया। मेराज में क्योंकि वो सारे वाली वो भी अच्छा, गोश्त अब पाक के सुनिए। कंधे पे रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कन्या मेराज में गए थे, गोश्त पाक के कंधे पे रख चढ़ के ऊपर चढ़े थे अर्श पर। वो तो पूरे जिसमें वो अतार के बातें साथ ही है ना वहाँ, जी, वो जिसमें अतार के साथ ही है ना, उनके कंधे पे पाँव रख के चढ़े हैं अल्लाह के पास जब गए, अर्श पे गए हैं। तो ये क्या है, जिसमें अतार के साथ ही तो माना है। ने आमीन उल कादरी जी, अगर आपने सवाल किया मेराज नहीं, हुई अब्दुल बोलकर, कादरी नहीं, बहुत सारे बरेवी उलमा ये बात मानते हैं, जैसे कहते हैं सारे वलियों के गर्दन पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पाँव है, मतलब हाँ इसको सारे वलियों के गर्दन पर, इसलिए हाँ, क्योंकि अल्लाह के नबी ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गर्दन पर अपना पाँव रखकर अल्लाह के अर्श पर चढ़े। अब ये अलग वाकया अलग मतलब एक मसला, नहीं, मैं एक 10, मसला 50 आप कंप्लीट गए हो ही तो नहीं। 20 बरेलवी उलमा को मैं आपको जो बयान के साथ ऑडियो, मैं तो ऑडियो हम लोग सुनेंगे, बाकी किताब तो हमारे पास नहीं देखे। ऑडियो जो आता है उनका ऑडियो तो ओरिजिनल ही होता है, डुप्लीकेट तो होता नहीं बनाया हुआ अच्छा यूट्यूब पे। जनाब, मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ। ये सब मैं अकीदा वीडियो मतलब मान बरेलियों नहीं का रहा है। हूँ, आप बोल रहे हैं मैं मान रहा वही हूँ। अकीदा दोबारा जो किताब में लिखा है वही वो लोग बयान करेंगे ना, ये वक्त, किताब से हट कर वो बयान करेंगे। हाँ, आप जो जो बोल रहे हैं आप बोलकर जी खामोश हो जाएं, फिर मुझे बोलने दे। जी जी, चलिए अब मैं खामोश होता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले अल्लाह की सिफात के बारे में हमने कहा कि अल्लाह की सिफात का बंदा मजहर होता है। आपने इस बात का इनकार किया, अल्लाह जैसा मान रहा है बोल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाता है वकानल इंसानु समीअम बसीरा। अल्लाह ताला ने इंसान को समीअ और बसीर बनाया। लफ्ज़ याद रखिए, समीअ और बसीर। और समीअ, समीअ का माना है सुनने वाला, और बसीर के माना है देखने वाला। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला इंसान को समीअ और बसीर बनाया। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह समीउम बसीर। यहाँ समीअ और बसीर भी है, और इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, समीअ और बसीर है। और दूसरी जगह कहाँ है, अल्लाह इंसान को समीअ और बसीर बनाया। तो इससे साबित हो रहा है कि बाज़ सिफातों का अल्लाह ताला बंदे को मजहर बनाता है। मजहर किसे कहते हैं, जैसा एक आईना के सामने आप खड़े हो, आईना के सामने खड़े हो, आपका जिस्म जिधर है वो है असल, और आईना के अंदर जो दिख रहा है वो है मजहर। तो अल्लाह बिला तमसील, अल्लाह ताला बंदे को मजहर बनाता है दो सिफात को छोड़कर। बाकी सिफातों का बंदा मजहर हो सकता है। तो इस वजह से गुलू समझा जाएगा, अमीनुल कादरी की बात को गुलू समझा जाएगा, लेकिन इस पर कुफर आयद नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह खुद बंदे को समीअ और बसीर बनाया है। अल्लाह खुद भी समीअ और बसीर है। अल्लाह ताला नबी को रऊफुर रहीम बनाया, अल्लाह खुद भी रऊफुर रहीम है। अल्लाह रऊफुर रहीम है, नबी भी रऊफुर रहीम है। अल्लाह समीअ बसीर है, बंदा भी समीअ बसीर है। अल्लाह माफ करने वाला है, बंदा भी माफ करने वाला है। अल्लाह छुपाने वाला है, बंदा भी छुपाने वाला है। आयब को छुपाना अल्लाह की सिफात है। अल्लाह सत्तार है। आप भी, मेरी गलती आपको मालूम है, आपने छुपाया, तो आप भी सत्तार हैं। तो इसमें कुफर भी नहीं होगा, शिरिक भी नहीं होगा। आप अल्लाह जैसा नहीं मान रहे हो, बल्कि अल्लाह का मजहर मान रहे हो। जैसा आईना के सामने आपका जिस्म अलग है, आपका मजहर, आपका जरक्स दूसरी तरफ है, आईना की तरफ। तो अल्लाह ताला इंसान को जो दिया है, दिया हुआ माने तो शिरिक नहीं होता, ओरिजिनल माने तो शिरिक होगा। तो अल्लाह ताला की दिया हुआ सिफात अगर बंदे के लिए माना जाए तो कुफर शिरिक नहीं होता। आपने जो कहा कि अल्लाह जैसा मानता है बरेलवी, हरगिज नहीं। अल्लाह ताला चलिए मजहर बनाया है। हो गई आपकी बात। हाँ, हो गई, आगे बताइए। मगर बंदे की एक लिमिट होती है, जितने भी सिफात अल्लाह ने दिए हैं बंदे को दिए, उसकी एक लिमिट है। लिमिट से बाहर जो मानेगा वो दर्जे पे चला जाएगा, कुफर और हाँ शिर्क पे आ जाएगा। एक लिमिट है। मेरी सुनने की, यहाँ बैठे मोबाइल से मैं सुन सकता हूँ, पर आप वहां से मुझे पुकारे बगैर कोई कनेक्शन के तो मैं आपकी बात नहीं सुन सकता, मेरी हाँ सिफत में नहीं है। हाँ अल्लाह सुन सकता है, अल्लाह की सिफत है, अल्लाह जहाँ से पुकारे। तो जब मैं अमीरुल कादरी ने जो बात कही है, खुद अल्लाह ने कुरान में वो बात मौजूद है अल्लाह के लिए, वो किसी के लिए नहीं मौजूद है कि सारे कलम को शाही बना दिया जाए, सारे दरख्त को कलम बना दिया जाए, कि अल्लाह की शान लिखी जाए, सारे कलम उसमें भी सारे इंसान को बुला लिया जाए, फिर उसको जमा सब लिखने अल्लाह की तारीफ लिखे,
पर अल्लाह की तारीफ खत्म नहीं होगी। इंसान, कलम भी सूख जाएगी, कलम भी खत्म हो जाएगी, शायद भी कूद सूख जाएगी। तो यही सिफात डायरेक्ट, यही ये सिफत अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही है, ये अल्लाह ही हो सकता है कि यही सिफत कोई कहे नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है, उनकी भी शान इतनी, अल्लाह की एहसान है, किसी के लिए हो ही नहीं सकता एहसान, किसी इंसान के लिए यूज हो ही नहीं सकता कि कोई लिखे कि, और यही शान वो कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह के अलावा एक और है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी शान इतनी बुलंद है कि कलम को, सारे दरख्त को दुनिया के जितने, उसको कलम बना दे, सारे समुंदर को शाही बना दिया जाए, फिर लिखे, शेख अब्दुल कादिर की शान खत्म नहीं होगी। मतलब ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई इतना बड़ी कुफ्र नहीं है? ये तो आम है कि किसी काफिर को सामने बैठा लिया जावे, जो वो भी बता देगा ये क्या है। मेरी बात अच्छा, कंप्लीट हो गई। आपकी बात हुई। तो जो बात अमीनुल कादरी ने जो कहा, सबसे पहली बात तो हमने कहा कि अमीनुल कादरी 10 साल पहले हम लोगों ने कुफ्र बॉयकॉट है, कर फिर दिया। बात वही आप माने, वो कुफ्र है किया है कि नहीं? बात अमीरुल कादरी कोई आप माने कि नहीं, वो बात की मारे, मतलब वो जो वो कह रहे हैं बात जिस वो बारे किस में दर्जे कहा, पर आ रही है, वो आपकी किस बात दर्जे हुई। पर अभी वो मैं बात आ बात रही है। कंप्लीट करूं, मैं बात कंप्लीट हाँ, करता हूं, मैं आपको सारी बातें बता देता हूं। अमीनुल कादरी ने जो जो बातें कही, आपने खुद कहा कि अल्लाह की सिफात बंदे में अल्लाह ने दिया है तो लिमिट दिया है। तो ये जो लिमिट है, लिमिट में से ये जो मुहक्किकीन फरमाते हैं, और तमाम तफसीर में भी अल्लाह की सिफतों के जो भी जिक्र है वहां पर है कि अल्लाह ताला 2 सिफत किसी को नहीं देता। बाकी अल्लाह करोड़ों अरबों खरबों सिफात है, वो सिफातें अल्लाह ताला के अनगिनत जितनी सिफतें, अनलिमिटेड सिफतें हैं, अनलिमिटेड अल्लाह की सिफतों को अल्लाह ने बंदों को दिया है। उस बंदों के सिफातों को अल्लाह ने, अल्लाह के खास बंदों को, तमाम बंदों की सिफातों को मजमूई तौर पर अल्लाह के वलियों के सरदार है, उनको भी अल्लाह ताला इतनी सिफातें दी है। ये जमीन के जितने पूरे जमीन है ना, और जमीन के अंदर जमीन को अगर कागज बना दिया जाए, और फिर सियाही, समंदर, ये भी लिमिट है, ये लिमिट है। समंदर, 7 समंदर भी अनलिमिट नहीं हुआ, लिमिट में ही है। अगर ये सारी सिफातों को, सारी चीजें, अल्लाह वालों की सिफातें लिखी जाए, अल्लाह वालों की शान बयान किया जाए, अल्लाह वालों की शान भी अल्लाह ताला ने दुनिया में जो बताया गया है ना, ये सारे लिमिट के अंदर में ही है। और अल्लाह की सिफत इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा है। दुनिया में ये जो 7 समंदर है, ये भी तो लिमिट है, लिमिट ही तो है, अनलिमिट तो नहीं है ना। अल्लाह के इल्म में ये लिमिट है, और ये लिमिट के अल्लाह वालों की सिफातों को भी अल्लाह ताला ने इतना दिया है, इतना दिया है। सिर्फ 2 सिफात को अल्लाह ने नहीं दिया। एक है माबूद होना, इबादत के लायक होना, इलाह, माबूद, ये नहीं है कोई भी, ये सिफात किसी भी मखलूक में नहीं है, और ये मानेंगे तो शिरक होगा। और है वाजिबुल वजूद। वाजिबुल वजूद कौन है? अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। वाजिबुल वजूद कौन है? अल्लाह खुद से वजूद में है, अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, अल्लाह किसी और चीज से वजूद में मोहताज नहीं है। वाजिबुल वजूद अल्लाह है, अल्लाह सबसे पहले है। इस वजह से ये 2 सिफात को मानने से मुशरिक होता है। अल्लाह के अलावा किसी और मखलूक में अगर ये 2 सिफात मानते हैं तो मुशरिक होता है। और करोड़ों सिफातें हैं, सब अगर अब्दुल कादिर जिलानी में माना जाए फिर भी मुशरिक नहीं होगा, क्योंकि हमने मान लिया कि अब्दुल कादिर जिलानी वाजिबुल वजूद नहीं है, अब्दुल कादिर अरे जिलानी भाई, हमारा माबूद आपकी नहीं है। बात अब इतना लंबा भी बहुत लंबा कर देते हैं हो गई बात, आपने अभी आगे बढ़िए। दो बात इसमें कहे कि सारे वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। ये हमारा अकीदा नहीं, हमारा अकीदा है सारे वलियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारा ये अकीदा है, क्योंकि सरदार वो होता है, सरदार तो हुजूर ही है, और कोई दूसरा सरदार हो नहीं सकता है। दूसरी बात तो उसमें कि उनकी उनकी शान कभी खत्म नहीं होगी, उस अल्लाह की शान कभी खत्म नहीं होगी, शेख अब्दुल कादिर की भी शान कभी खत्म नहीं होगी। क्या बात, आप कहाँ की बात कहाँ है? इतना बड़ा कुफ्र आप मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, खत्म नहीं होगी ये तो मैंने नहीं बोला, ये तो लिमिट ये है। भी जुमला है, जब ये भी सारी जुमला दुनिया के है। जो कागज, सारी दुनिया के जो समंदर खत्म में हो पानी जाएंगे, है, शाही खत्म। इतनी शान शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रहमतुल्लाह अलैह की जो शान, मतलब ये अल्लाह ने जो अपने अगर लिए जो मान बयान लो किया तो है। भी शिरिक लाजिम नहीं आता।
اس سے شرک لازم شریک نہیں نہیں آتا، کیونکہ تو پھر میرے باقی میرے صفاتیں نزدیک اللہ کی کفر ہے۔ باقی صفاتیں مخلوق میں ہیں، ارے مخلوق اللہ میں جو ہے۔ جو شان اللہ نے اپنے لیے جو چیز اپنے لیے طے کیا ہے کہ یہ صرف میرے لیے ہی کہا جا سکتا ہے، وہ دوسرے میرے کی وہ لیے چیز کہا کہا جا جا ہی سکتا نہیں ہے، سکتا۔ یہ دو ہی صفات ہے، اللہ نے دو ہی صفات ایک کے منٹ بارے میں ایک کہا۔ منٹ نہیں، آپ کی مجھے باقی دوسری آپ میری بات ہونے سنیے دیجیے، میری بات ہونے دیجیے، میری بات عمران ہونے صاحب، دیجیے، اسی ٹاپک میری کو بات ہونے آج دیجیے۔ یہاں مکمل کرتے ہیں، کل اس سے آگے بات ہوگی۔